उसको बोलते हैं सप्रेस्ड एंगर। सप्रेस्ड एंगर का अर्थ क्या है? सप्रेस्ड एंगर मतलब दबा हुआ क्रोध। वो दबा हुआ क्रोध फिर किस में टर्न हो जाता है? गिल्ट में। फिर गिल्ट किस में टर्न होता है? फियर या हेट्रेड। तो फिर वो एंगर नहीं रहता है, हेट्रेड हो जाता है। जैसे आपको पता है कच्ची केरी। So when the anger is suppressed, it turns into guilt. When the guilt is not resolved, it turns into either fear or hatred. So you know the raw mango, how does it taste? So you cut the raw mango and you make a salad. Salad you can eat today. Salad you can eat in the evening. Tomorrow you can eat that salad which you have cut. No. Correct? Then you convert that cut mango into pickle. Pickle you can eat the whole year. So when the person opposite to you is a powerful person, then it comes out as a anger. But when you suppress the anger, it is no more anger. It becomes hatred. It becomes pickle. Then you eat it the whole year, or maybe 5 years, or maybe 5 lifetimes. So the anger which is suppressed will never stay as anger. It will become hatred, and in next life also, if you see that person, you will feel that hatred. It happens, right? When you look at some person, you feel a fountain of love. You're seeing that person for the first time. You automatically start dancing, singing, crying. Emotions flow. एक जन्म का है नहीं ना, वो पिछले जन्म का है। वो वहां पे व्यक्त प्रेम नहीं हुआ तो यहाँ पे आके हुआ। अब उसी प्रकार से जब प्रेम की जगह पे एंगर व्यक्त नहीं होता है तो फिर वो हेट्रेड में टर्न हो जाता है। तो एंगर कैन नेवर बी सप्रेस्ड, लव कैन नेवर डाई, एंगर कैन नेवर बी सप्रेस्ड। किसी से हम क्रोधित है और वो क्रोध अंदर दबा के क्रोध रहेगा नहीं, वही क्रोध जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। देखो शायद वो तुम्हारा पार्सल वाला है। वो ही क्रोध परिवर्तित होके नफरत में परिवर्तन हो जाएगा, और वही क्रोध जो है वो आगे चल के कहां ले जाएगा। उसको अगर नफरत में या भय में, क्रोध पहले घृणा में बदलता है, घृणा उसको नहीं संभाला तो वो नफरत या भय में परिवर्तित होता है। अगर तुम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते तो फिर भय भी हो सकता है। फिर भय को भी नहीं निकाल पाए तो वो लालच या जलन में परिवर्तित होगा, और फिर वो लालच और जलन भी अगर तुम उसको ठीक नहीं कर पाए तो वो क्षोभ अर्थात डिप्रेशन में परिवर्तित होगा, और क्षोभ भी नहीं ठीक कर पाए तो सुसाइडल टेंडेंसी में परिवर्तित होगा। आत्मघात, आत्महत्या में परिवर्तित हो जाएगा। तो एंगर इज never suppressed. Anger turns into guilt, guilt turns into fear or hatred turns into greed or jealousy. If you don't resolve it over there, greed and jealousy converts into depression, depression converts into suicidal tendencies. So the 5 main types of fires which make you go crazy, which give you too many thoughts. ये 5 प्रकार की अग्नि जो आपको पागल बनाती है, जो आपको
नशे में डालती है, बेहोश करती है और अति विचार देती है। फिफ्थ कौन सा है? फोर्थ आई हर्ड, सॉरी फिफ्थ आई डिडंट हियर। तो अभी तो हम तीसरे की बात कर रहे हैं, बुवाड़ अग्नि। बुवाड़ अग्नि क्रोध अग्नि है, लेकिन क्रोध अंदर दबा हुआ क्रोध नहीं रहता है। बस I have a question in this. Growth, generally they say anger is connected to Anahata Chakra, but doesn't it affect your mind? Anger is not it's mind. connected with Anahat. Mind. Anahat, Fear. Anahat is fear and hatred. Hatred and love. So anger is cut. When you're angry, you do this. Agya Chakra. Yeah. But isn't Anahat love? Love, hatred and fear, all three are connected. Love, hatred and fear are Anahat Chakra. Every chakra has positive, negative and a standstill quality. When the chakra is blocked, there has to be a negative effect. When the chakra is moving anti-clockwise, there has to be a negative effect. When the chakra is moving clockwise, there has to be a positive effect. Got it? So anger, fear, hatred is all anger. प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और क्रोध कभी दबाने पे क्रोध रहता नहीं। प्रेम हमेशा नफरत में परिवर्तित होता है। प्रेम स्वयं ईश्वर है, ईश्वर कैसे मर सकता है? Love never dies. Love is God. That same love, when it does Shirshasana upside down, it turns into hatred. The more you love a person, that person you might hate that much. If you love less, there will be less hatred. If there is no love, maybe you will forgive without hatred. Hatred is love standing upside down. What is the first type of fire that you people said? Jatar Agni. What is Jatar Agni? The fire of digestion. सबसे पहली अग्नि जठर अग्नि। जठर अग्नि हाजमे का अग्नि है। जठर नाम का चक्र नाभि से 2 इंच नीचे हरा है और नाभि से 2 इंच ऊपर जठर है। वो जठर चक्र नाम जो है हर चक्र और जठर चक्र। जठर अग्नि जो है वो हाजमे के लिए मदद रूपी होती है। दूसरे प्रकार की अग्नि कौन सी हुई? काम अग्नि। द सेकंड टाइप ऑफ फायर इज द फायर ऑफ लस्ट। इट बिकम्स द सेकंड टाइप ऑफ फायर। Whatever thoughts come during that, you conceive that kind of child or you manifest that kind of thing. It is also very powerful. So while eating, you chant mantras. भोजन करते वक्त जठर अग्नि को आग देते वक्त मंत्र करे, वासना करते वक्त भी मंत्र करे। You chant mantra also while you are into union with your husband or your wife. जठर अग्नि, काम अग्नि। Third is Bhuvad Agni. Bhuvad Agni is the fire of anger, resentment, guilt, anxiety, greed, jealousy, hatred, fear, everything negative. जो Bhuvad Agni है, Bhuvad Agni हर प्रकार की नकारात्मकता, क्रोध, चिंता, अहंकार, घृणा, दुख, अपमान, भय, नफरत, हर प्रकार की अग्नि है भुवाड़ अग्नि। जब भी ऐसा भी हो तभी भी जप करो। फिर उसके बाद में चौथे प्रकार की अग्नि कौन सी है? भूताग्नि। द फोर्थ फायर इज द बॉडी टेम्परेचर फायर। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड द भूताग्नि। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर। शरीर का तापमान तय करती है भूताग्नि। एक स्वान, एक कुत्ते का शरीर हमसे थोड़ा ज्यादा गर्म रहता है। एक बिल्ली का शरीर हमसे थोड़ा ज्यादा ठंडा रहता है। कछुए का एकदम ही ठंडा रहता है। ये कौन तय करता है? भूताग्नि। Who decides what body temperature you will have? भूताग्नि।
what happens is, when you tell someone, come walking with me, Guruji, sun, glass, umbrella, cap, थोड़ा सा कहीं धूप में निकलना हो ना, और तुम अपनी गाड़ी में भी बैठे हो तो गाड़ी में भी पर्दे खींच लोगे। धूप में निकल रहे हो तो चश्मा चाहिए, टोपी चाहिए, छतरी। थोड़ा भी धूप सहन नहीं होती है, थोड़ी भी ठंड सहन नहीं होती है। बुखार आया तो तुरंत दवाई दो। भूताग्नि को देखो और भूताग्नि में भी जप करो। You also, when your body temperature is flickering, na, that time also you do jap. Bhutagni. And then after Bhutagni comes the fifth fire. What is the fifth type of fire? पांचवें प्रकार की अग्नि कौन सी है? प्रेम अग्नि, ज्ञान अग्नि। गुरुजी मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ मंत्र नहीं, कुछ नहीं, ना जानू मंत्र ना कोई पूजा, मुझे तो बस भक्ति। नहीं, वो प्रेमाग्नि है, उसमें भी मंत्र करो। एक स्टोरी कम, वन स्टोरी। There was a time that Shiva got married to Sati. एक समय हुआ, भगवान पिता बाबा शिव की शादी हो गई माँ सती से। तो वो लोग विराज करते थे गुफा में हिमालय की। तो एक दिन हिमालय से दिख रहा है बहुत सारे एरोप्लेन जा रहे हैं, सब देवी देवता, सब अलग अलग राजाओं के, और वो सब विमान जा रहे हैं हरिद्वार की ओर, वाराणसी की ओर। हरिद्वार वाराणसी ये किसका राज था? सती के पिताजी का। बोला ये सब एरोप्लेन यहाँ क्यों जा रहे हैं? पूछताछ की। बोला आपके पिता ने यज्ञ रखा है तो सब यज्ञ में जा रहे हैं। So when all these flights were going, they said, Sati inquired, why is all this going to my father's kingdom, Haridwar, Banaras, Varanasi? So they said that this flights are going to your father's place because he's performing a yajna. So she said, why he did not call me? I want to go. So Lord Shiva says, we can't go without invitation. It's not good. It's rude. So she said, no, I want to go. I will go. उन्होंने कहा शायद दास या जो खबर पहुंचाता है वो भूल गया होगा खबर पहुंचाने का। मुझे तो जाना है। भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं जा सकते, अपमान होता है। किसी के यहाँ बिन बुलाए कैसे चले जाए? नहीं, बुलाया होगा। मेरे पिता, मैं सबसे लाडली, और लाडली भी कैसी? दक्ष प्रजापति ने माँ की उपासना की, देवी माँ की। वो देवी माँ की उपासना से देवी माँ के अंश 1098 कुछ बेटियां हुई, एक के पीछे एक भी बेटा नहीं। Daksha Prajapati, on worshipping goddess with the blessings, with the boon of goddess, got 1098 or some more than 1000 daughters, not even one son. And then he did a strong penance of goddess on orders of his father, Lord Brahma. And goddess came in her full glory and asked Daksha Prajapati, what do you want?
तो दक्ष प्रजापति said that my father has asked me to do the penance of you because do this for the world. And she granted the boon, and she said, I'm really pleased with you this time. You tell me one more thing. You don't have a son. You want me to come as a son to you? He said, no, ma. A father loves the daughter the best. Come as a daughter. She said, again, one more daughter? He said, yes. And she was the jewel of his eye, Sati. तो दक्ष प्रजापति के तब से इतनी बेटियां हुई, फिर वापस एक बार अपने परमपिता ब्रह्मा के कहने पर उन्होंने तब किया। माँ प्रसन्न हुई, माँ ने बोला क्या चाहिए, तो कहा ये मेरे पिता ने जगत कल्याण के खातिर मांगा है, तो ये करो। तो बोला वो तो हो जाएगा, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ इस बार। पूर्ण स्वरूप में अपने माँ आई थी। बोला तू बोल और क्या चाहिए तुझे। बोला माँ मेरे घर बेटी बन के आ जाए। बोला बेटा नहीं, हजारों के ऊपर बेटी है तुझे, बेटा नहीं हूं मैं, बेटी। मैं पिता जैसा बेटी को प्रेम कर सकता है वैसा बेटे को नहीं। तो अति प्रिय बेटी, उसको कैसे भूल सकते हैं। वो जिद करके जाने वाली थी, तो भगवान शिव ने कहा कि तुम पहले एनलाइटेंड हो जाओ पंच अग्नि ध्यान से, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति अग्नि से ही है। और अंत में वो अग्नि में कूद के उनकी मुक्ति हुई। तो पंचाग्नि ध्यान में तुम जलो, पंचाग्नि में तुम जलो, और वो पंचाग्नि से तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम पंचाग्नि ध्यान करो। तो माँ ने बोला जल्दी जल्दी कराओ, मुझे जाना है। हवन चालू हो गया। सो मदर सेड कम, आई वॉन्ट टू गो वेरी फास्ट, let me be enlightened very fast. But enlightenment does not happen in hurry. Come on Guruji, I want mental peace. I don't have the whole day. Give me patience God, immediately. तो बैठ गए। तो भगवान शिव ने पंचाग्नि ध्यान करवाया। पंचाग्नि मतलब ये 5 अग्नियों में याद रखो कि मैं ईश्वर। Panchagni meditation means in these 5 types of fires, you remember that you are God. Panchagni meditation. So when you do Panchagni meditation, what happens? You become enlightened. But it did not happen. She went without it. She said, I am not believing in all this. तो पंचाग्नि उनसे हजम नहीं हुई, हो गए। फिर वो वहीं पे अग्नि में कूदे, क्योंकि अग्नि लेकर गए थे, शांत करके नहीं गए अग्नि को। तो तंत्र में इसको पंचाग्नि ध्यान बोलते हैं। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि गोबर की पिंडी या 4 तरफ रखते और एक अपनी तरफ रखते, उसको जला के उसको उसके अंदर बैठ के ध्यान करते हैं। और एक वज्र सिद्धि भी है कि पूरा ऐसे सर्कल में आग लगाते हैं, इतना दूरी पे, 3 फुट की दूरी पे, और उसके बीच में बैठ के तुम्हारे पास एक आग जला के उसके बीच में 11,000 या 1.25 लाख जप करना है। जब तुम कंप्लीट करके वो बाहर आते हो ना, तब तुम्हारा शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा होता है। और इनकम्प्लीट करके तुम ऐसे ही बाहर कूद गए, डर गए कि आग लगी है शरीर को, शरीर जल जाएगा। पहले तो शरीर इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है, त्राहिमाम, ऐसा लगता है आग लग गई शरीर को, सब बाल बिल सब जलने लगते हैं और तुम डर जाते हो। लेकिन पता है कि गुरु ने आज्ञा दी है, अगर मर भी गए तो अच्छा ही होगा। और गुरु कहते भी है कि इसमें काफी लोग मरे भी हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि तुम नहीं मरोगे। तो काफी लोग की मृत्यु हुई, काफी लोग मरे, तो उसका कोई बात नहीं। मरेंगे भी तो भी साधना करते हुए मरेंगे ना, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मरेंगे। गुरु कुछ हमारा अच्छा ही करेगा तो हमारा कुछ अच्छा ही होगा इसमें। हम मर गए तो मरने दो, मरे तो मरने दो, लेकिन पूरा करो।
वो करने के बाद जब बाहर आओगे ना, तुमको ऐसा लगेगा भाई एसी कम करो, इतनी ठंडी लगेगी कि बर्फ गिरी क्या, अरे बाप रे, इतना शरीर शीतल हो जाएगा। और बीच में से अगर कूद गए तो पूरा दिन गुस्सा, पूरा दिन नहीं पूरी लाइफ गुस्से वाले, और हो सकता है अगला जन्म भी गुस्से में निकले। तो क्रोध जो है ये भयंकर है, वो पंचाग्नि ध्यान। लेकिन आजकल क्या करते हैं, ये आग में बैठते हैं ना, तो ठीक है वो आग में तो बैठो, लेकिन असली पंचाग्नि ध्यान क्या है, असली पंचाग्नि वज्र सिद्धि क्या है, कि जब ये 5 अग्नि उठे तब तुम अपना मंत्र करो, तब अपने आप को याद दिलाओ कि मैं ही अपनी माँ हूं। So nowadays, after that, Lord Shiva made her sit with Panchagni, but she couldn't, and she left and she jumped into the fire and she was liberated, because Lord Shiva knew that you will be liberated by 5 fires. So Lord Shiva made her sit in 5 fires, but she couldn't, so she left without being enlightened. So in Tantra also there is one of the Vajra Siddhi, which is Panchagni Dhyan. And this Panchagni Dhyan is that, you know, it's like fire. And this fire is so powerful, is so strong, you know, that it is so burning. And in that, if you remember that I am God, in no situation can you forget that I am God. So in Tantra, they lit 1 fire and 4 around, and then they make you do japa, and then they burn fire all around, and you are sitting in between. You feel like you are going to get burned, your body is burned. So when you come out, your body automatically becomes cold, but you have to complete and come out. If you come out midway being scared, then no use. But when you come out, your body becomes very cold. You feel so cold, shivering. Your body becomes calm. And of course, you lose a lot of weight in it. So, the Guru advises that when you enter into this sadhana of Panchagni, the physical fire, it is better that you gain some weight and then you get inside. Huh? So, for the last time, we will end this topic. We will refresh all 5 fires. हम ये सब्जेक्ट को खत्म कर रहे हैं. कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, प्लीज. I know. Tell. Okay, she does not want to say when the camera is on. तो 5 प्रकार के अग्नि को हम पूरा वापस ध्यान करें, बोले. उससे पहले किसी को कोई प्रश्न है? क्रोध अग्नि को शांत कैसे? क्रोध उसको शांत नहीं करना है ना, उसमें साधना करनी है. साधना. शांत की तो बात ही नहीं है. शांत करना मतलब आधे में बाहर निकल जाना. How to calm down anger? Calming down anger is what she said. Suppressing anger. You don't have to suppress it. You don't have to calm it down. You have to do your japa. Huh? So what are the 5 types of fires? 5 agni कौन सी है बताओ? जठराग्नि, कामग्नि, भूधाग्नि, भूताग्नि and पंचाग्नि. प्रेमाग्नि और ज्ञान अग्नि. प्रेम हो, ज्ञान हो, that is 5th अग्नि. प्रेमाग्नि, ज्ञान अग्नि, ये 5वीं अग्नि. कोई प्रश्न? हरि ओम तत्सत.